quality of protein, or there is a protein and energy ratio is not proper, then these problems can arise. So that's why the name of the disorder is protein energy malnutrition. As I already told you that the protein intake is always coupled with the energy intake, that if you have enough amount of the energy intake, then only the protein can be utilized for its own purpose. But if you are not providing enough amount of energy, then the protein will be used for the energy purpose and it will not be able to perform its functions in the body. जो उसके प्राइम फंक्शंस हैं कि उसने मसल बिल्डिंग करनी है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनानी है, प्लाज्मा प्रोटीन्स बनानी है, तो वो वाले सारे काम फिर अधूरे रह जाते हैं. So in that case, protein and energy malnutrition is a kind of a group of disorders जिसको हम एक अम्ब्रेला कहते हैं, और उसके अंडर हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उनको अलग नाम देते हैं. ठीक है. So quickly we can go through this slide that protein energy malnutrition describes a range of clinical disorders. It occurs characteristically in children under 5 years of age, but it is not limited to the children only. You can see protein energy malnutrition in adults and elderly patients as well. For example, cancer के patients के अंदर भी आपको protein energy malnutrition नजर आती है. They are adults, but they are not having enough amount of energy, and they can also have enough amount of proteins or good quality proteins. So they are also suffering with a kind of muscle wasting, which will be known as protein energy malnutrition. But here what we are talking about is more oftenly presented by the children under 5 years of age. At one end, the disease is known as marasmus. It is due to the continued restriction of the both dietary energy and protein as well as other nutrients. तो यहाँ पर अब हम जो दूसरी आपका पॉइंट है स्लाइड के ऊपर, वो ये बता रहा है कि मरासस एक बीमारी का नाम है जिसमें हम कंटिन्यूड रिस्ट्रिक्शन रखते हैं इन द डाइटरी एनर्जी एज वेल एज प्रोटीन. रखते क्यों है? क्योंकि देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज के द चाइल्ड इज बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली एंड द फैमिली कैन नॉट सपोर्ट अ गुड डाइट टू द पेशेंट, टू द चाइल्ड. So the child is suffering with energy restriction as well as protein restriction, कि उसकी जो एनर्जी की जरूरत है वो भी पूरी नहीं हो रही और प्रोटीन की जरूरत भी पूरी नहीं हो रही. इसके साथ साथ और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी उसको डाइट के थ्रू पूरे नहीं मिल रहे. जब ये प्रोसेस जो है वो ज्यादा टाइम के लिए रहेगा कि ना उसको एनर्जी मिलेगी ना प्रोटीन मिलेगी, तो अल्टीमेटली जो डिसऑर्डर उसके जिस्म में डेवलप होगा उसे हम मरासमस कहेंगे. ठीक है. Marasmus is the disease which is resulting due to the restriction of dietary energy and proteins. On the other side, we have Kwashiorkor due to quantitative and qualitative deficiency of protein, in which energy may be adequate. अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो डेफिनेशंस हैं ये एज सच जो है, मैंने जब मैं आपके एज में थी तो मैंने याद की थी, और अब आप लोगों को भी इसी तरह से याद करनी पड़ेंगी, बिकॉज दीज आर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द होल process. That Kwashiorkor means that Kwashiorkor is a disease or a disorder which is happening due to the quantitative and qualitative deficiency. Quantitative का मतलब यह है कि आपने क्वांटिटी भी कम दी है प्रोटीन की, जितनी बच्चे को जरूरत थी उससे कम प्रोटीन प्रोवाइड की है, और क्वालिटेटिवली भी वो प्रोटीन जो आपने प्रोवाइड की है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उस बच्चे को चाहिए थी. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स के जब पैरामीटर्स पढ़ाए हैं उस वक्त मैंने बताया था आपको कि नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जो है या biological value of protein of 70 जो होती है, that can support the growth of a child. तो ऐसा प्रोटीन सोर्स जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 70% होगी, अगर आप वो वाली प्रोटीन सोर्स बच्चे को देंगे तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मलाइज रहेगी. लेकिन अगर आपने लो क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड की तो बच्चा कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ disease which will be known as Kwashiorkor. But these Kwashiorkor and marasmus both are the extreme syndromes, but you can have different other presentations कि इन दोनों का मिक्सचर भी आपके सामने पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, कि पेशेंट जो है वो आपको मरासमस के साइंस भी दे रहा हो और क्वाशियोकोर के भी साइंस दे रहा हो, तो दैट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ मरासमिक क्वाशियोकोर. ठीक है.
but these are the two extreme syndromes, and there could be possibility कि कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ एक डिजीज के सिम्टम्स थोड़े नजर आ रहे हों, दूसरे में दूसरी वाली के नजर आ रहे हों, but when you go into more detail you will know that what kind of deficiency this patient is suffering and what kind of nutritional support I have to provide to this patient. So we go further with the causes of marasmus, and then again with the Kwashior course, so that you will understand what is actually happening. In the marasmus, basically, it develops between the first year of life, and it is more frequently present in the towns. Towns में ये क्यों है, यानी कि ऐसे जगह जहाँ पर आबादी जो है वो शहरी आबादी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर लो रिसोर्स सेटिंग है. फॉर एग्जांपल slums areas, and people living in very unhygienic conditions, their children are on higher risk of developing marasmus. In marasmus, weaning has been early. Weaning होता है कि आप बच्चे को जो है from the birth you keep the baby on breastfeeding, and after 6 months of age, WHO recommends that you should start the weaning of the child, that you start giving them solid foods. But in the patients who are developing marasmus, when you ask their parents, you come to know that the breastfeeding was stopped before 6 months because of many problems. For example, mother may be induced to stop breastfeeding of various reasons, including the presence of infections. If the mother herself is sick, she will not be able to breastfeed, or if she has to go for her work, she will not be able to breastfeed her child, and there could be many other reasons by which she cannot breastfeed, and she starts giving any other food before the 6 months of age. क्योंकि 6 months तक बच्चा जो है वो बहुत छोटा होता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांगली डेवलप नहीं होता, उसका जो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है वो बिल्कुल सही डेवलप नहीं हुआ होता. So the breast milk can protect that infant from all those infections. But if you start giving other foods before the 6 months of age, then you put the child on risk of developing infections. That's why जो मरासमस डेवलप होगी, जब आप उस बच्चे की हिस्ट्री पूछेंगे उसकी मदर से, तो आपको ये पता चलेगा कि जो माँ का दूध है वो बच्चे को 6 महीने तक नहीं पिलाया गया, और उससे पहले ही उसको कोई और दूध देना शुरू कर दिया है, या उसको कोई और चीज खिलाना शुरू कर दिया है. तो जब आप कोई भी और फॉरेन फूड खिलाएंगे तो उसके साथ इन्फेक्शन जाने के चांसेस होंगे, उसके साथ जर्म्स जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे. When abrupt weaning is started following a dirty and unsound artificial feeding of infants with very dilute milk products to avoid expenses. What is actually happening, as I told you, that this is a disease of towns and the people who are living in unhygienic, poor settings. वहां पर क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल द वुमेन्स आर वर्किंग इन सम factory, or they are working some household chores, so they have to leave the baby at home and they are going for work, and someone else is taking care of the baby. So in that case they are not actually performing the hygienic practices. वो जो है dirty milk बच्चे को ऑफर कर देते हैं, बॉटल को बिल्कुल धोते नहीं है, और बॉटल के ऊपर somehow जर्म्स रह जाते हैं, और जो मिल्क है वो भी डाइल्यूट करके देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर अदर चिल्ड्रन एज वेल एट द होम एंड दे हैव टू ऑफर द काउ मिल्क, दे विल एड सम वाटर इन इट सो दैट सारे बच्चों को दूध मिल सके. तो उस सूरत में वो वाला बच्चा जो 6 महीने से भी छोटा है, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, उसकी प्रोटीन की जरूरत बहुत हाई है कि उसे अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन मिले, वहां पर उसको दूध के अंदर पानी डालकर और फिर उसके बॉटल को भी साफ नहीं रखा गया, और वो पानी जो ऐड किया गया है वो पानी भी साफ नहीं है, तो उस सूरत में बच्चे के बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. ऐसा ही होगा ना? यस मैम. यस मैम. यस ठीक है, मैम. तो समझ आ रही है ना कि अगर इस तरह की सिचुएशन में बच्चे को रखा जाए तो बच्चे की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं होगी, और उसकी एनर्जी की जरूरत भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो बच्चा जो है उसको उसका पेट खराब हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो कुछ भी वो जितना भी मिल्क ले रहा है वो सारा उसको एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा. तो इन दोनों सूरतों में बच्चे की जो ग्रोथ है वो जो है वो ऑल्टर हो जाएगी.
क्लिनिकल फीचर्स, अब मरासमस में क्या होगा कि अगर आपने ये वाले सारे प्रोसीजर्स किए, फॉर एग्जांपल के मदर इज नॉट होम, शी इज लिविंग आफ्टर 2 months of having a baby and she has to go and work and she is leaving the baby with someone to take care, for example the grandmother or the elder sister जो पीछे घर पर है जिसने बच्चे का ख्याल रखना है, तो she is actually not taking care of the hygienic conditions and she is also trying to dilute the milk, so the baby will get sick, उसको इन्फेक्शन हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा और उस रिपीटेड इन्फेक्शंस होंगी, बार बार वो बच्चा बीमार होगा। जब बार बार बीमार होगा तो अल्टीमेटली उसके जो रिजल्ट्स होंगे, यू विल सी दैट बेबी इज हैविंग फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव का मतलब है कि ग्रोथ उसकी प्रॉपर नहीं हो रही होगी। द बेबी विल बी इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़ा होगा, फ्रेटफुलनेस और एपैथी होगी कि वो बहुत बेचैन होगा। डायरिया इज फ्रीक्वेंट एंड डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट। अगर उसको बार बार डायरिया होगा तो जाहिर है कि वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसके जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी। द चाइल्ड इज श्रंकन एंड देयर इज लिटिल और नो सबक्यूटेनियस फैट। बच्चे की टोटल बॉडी जो है वो श्रिंक हुई हुई होगी, यानी कि उसका साइज जो है जिस्म का छोटा रह जाएगा और उसके जिस्म के ऊपर जो सबक्यूटेनियस फैट है, जो आपकी स्किन के नीचे फैट होती है, जो बॉडी को एक शेप देती है, वो फैट बिल्कुल नहीं होगी। तो उसकी वजह से दैट बेबी विल नॉट बी एबल टू मैनेज द बॉडी टेम्परेचर एज वेल, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर जो फैट है वो आपके जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन करती है। द वेट इज मच बिलो द स्टैंडर्ड फॉर एज। जब आप उसका वजन उसकी उम्र के हिसाब से मैच करेंगे या कंपेयर करेंगे तो उसका वजन अपने उम्र के हिसाब से बहुत कम होगा। एंड द बॉडी टेम्परेचर इज सब नॉर्मल एज वेल, और उसका जो जिस्म का टेम्परेचर है वो भी कम होगा, यानी कि उसके हाथ पांव ठंडे होंगे। The abdomen may be shrunken or distended with gas. पेट जो है वो बिल्कुल हड्डियों के साथ लगा हुआ होगा या फिर वो गैस के साथ भरा हुआ होगा, फूला हुआ होगा। Because of the thinness of the abdominal wall, peristalsis may be easily visible. और उसके जो पेट की दीवार है यानी कि abdominal wall है, that will be very thin because you do not have enough amount of fat and subcutaneous fat. That's why the peristaltic movement is easily visible. For example, आपको उसके पेट के ऊपर जब आप हाथ रखेंगे तो आपको peristaltic movement जो है वो फील होगी। And muscles are very weak and atrophied. For example, 6 महीने का बच्चा जो है वो बैठ सकता होता है और 7-8 महीने का बच्चा जो है वो क्रॉल करना शुरू कर देता है। But the baby who is having these frequent episodes of diarrhea and infection, that baby will not be able to sit and that baby will not be able to crawl, क्योंकि उसके मसल्स जो हैं वो बहुत कमजोर होंगे और उसके अंदर ये ताकत नहीं होगी कि वो क्रॉल कर सके। तो अगर ऐसा बेबी आपके सामने क्लिनिक में आता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस बेबी इज एक्चुअली हैविंग अ मरासमस एंड दैट मरासमस इज बिकॉज ऑफ diluted milk and also due to early weaning and also due to unhygienic practices. तो अब आपने जब ऐसी बच्चे को माँ लेकर आएगी तो आपने उस बच्चे की तो ट्रीटमेंट करनी है, but the thing which you have to actually teach to the mother is that you have to tell that mother that you have to practice the hygienic conditions first of all. A very important thing is that you have to take care that you are washing the bottle properly, you are providing enough amount of the milk and you are cleaning the bottle every time you are offering to your child. क्योंकि ये होता है कि जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस को इग्नोर करते हैं तो बच्चा बार बार बीमार होता रहता है और फिर वो आगे जो है लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज पर चला जाता है। ये जो बीमारी है मरासमस, ये जानलेवा बीमारी हो सकती है, बच्चा इसकी वजह से मर सकता है। And in many places in the poor people, the children are dying due to marasmus or kwashiorkor. These both diseases are very life-threatening. ये अब उस बच्चे की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। अगर आपको इस तरह का बच्चा नजर आता है तो इसका मतलब ये है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी सबक्यूटेनियस फैट बिल्कुल नहीं है और हड्डियां जो है वो आपको नजर आ रही हैं। सो इट मींस दैट दिस बेबी हैज बीन सफरिंग विद diarrheal episodes very frequently and that is happening because the outdoor environment is not clean. बहुत सारे घरों में आपको पता है जो गरीब हमारी कम्युनिटीज हैं उनमें सैनिटेशन और हाइजीन कंडीशंस बहुत पुअर होती हैं और ओपन एयर डिफिकेशन होती है, वहां पर मक्खियां बैठी होती हैं, वहीं से मक्खियां उड़कर फिर उनके किचन में आ रही होती हैं। सो दीज कंडीशंस मेक इट वर्स
and then this happens that the baby or the children under 1 year of age, they develop more frequent infections, and they can easily die if they do not get medical attention. यहाँ तक मरासमस तक बात समझ आ गई है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, If you have any questions. yes, ma'am, अर्ली एजेस में बेबी को मेनली डाइल्यूटेड मिल्क ही दिया जाता है. लाइक अगर कोई जो इन्फेंट फॉर्मूलाज होते हैं वो भी स्टार्टिंग डेज में थोड़े डाइल्यूटेड होते हैं. जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज की जाती है. तो ये फिर एक्सट्रीम केस होगा कि बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर देते हैं. Who said that? मैम मैंने खुद नोटिस किया था. यस मैम, मैंने भी किया था कि जो शुरू शुरू में जो देते हैं वो थोड़ा डाइल्यूट देते हैं. Well, science does not say that. If you are you have seen it or you have observed it somewhere, that is a wrong practice. Basically, what literature says that you have to, in any case, provide best amount of the milk by the breast milk. ठीक है, सबसे पहले जो चीज रेकमेंडेड है और जिसके ऊपर स्ट्रेस किया जाता है, और देयर आर नो कॉम्प्रोमाइजेस इन एनी केस, दैट इज दैट यू शुड प्रोवाइड द ब्रेस्ट मिल्क. एंड इफ in many cases there is infection or unfortunately mother dies or there are some other chances, तो उस सूरत में फिर आप फॉर्मूला मिल्क की तरफ जा सकते हैं. और फॉर्मूला मिल्क, टू बी माय सरप्राइज, that formula milks are even higher in protein intake, and they are not diluted at all. But the thing is that for example, जो प्री टर्म इन्फेंट पैदा होता है, जो बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाता है, अगर आप उनके माओं के दूध की कंपोजिशन एनालिसिस करें तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द बेबी हु इज बोर्न ऑन टर्म. जो सही वक्त पर बच्चा पैदा होता है उसकी माँ के दूध का एनालिसिस करें, और जो प्री टर्म बच्चा पैदा हुआ है उसकी माँ के दूध का एनालिसिस करें, तो उस माँ के दूध में प्रोटीन्स की अमाउंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वन हु वाज बोर्न ऑन टर्म. तो अल्लाह ताला खुद भी बच्चे की जरूरत के मुताबिक जो है दूध की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को चेंज करते हैं. तो सिमिलरली जब आप प्री टर्म इन्फेंट फॉर्मूला लेते हैं तो उसमें प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल टर्म इन्फेंट. एंड द नॉर्मल टर्म इन्फेंट का जो फॉर्मूला है उसमें भी माँ के दूध से ज्यादा प्रोटीन एडेड होती है. इसलिए अगर आप देखें तो जो बच्चे फॉर्मूला दूध पीते हैं वो ज्यादा मोटे हो जाते हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है. और सेकेंडली हमारे यहाँ ये किया जाता है कि 6 months या बिफोर इवन 6 months काउ मिल्क स्टार्ट करा दिया जाता है और उसको हम डाइल्यूट करके स्टार्ट करते हैं, बिकॉज काउ मिल्क के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो प्रोटीन है जो कि बच्चे के लिए उस वक्त के लिए अच्छी नहीं होती है, और उसकी जो टाइप है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द चाइल्ड. बट द थिंग इज दैट अभी मैं जो है एक और सब्जेक्ट के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही थी और मैं अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस पढ़ रही थी फॉर द पीडियाट्रिक पेशेंट्स, और उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ था कि फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ अवॉइड गिविंग cow milk, and from the second year of life you can start with the fortified cow milk. तो अगर आपने बच्चे को cow milk ऑफर भी करना है तो try to offer it in the second year of life, not in the first year of life, because during the first year of life the intestinal lumen is not that mature to tackle these challenges. So it's better to start with the breast milk for first 6 months, and then breast milk should be continued for the first year, but you can start giving other solid foods after or at the 6 months of age, so that the calories and the proteins should be supplemented. कि बच्चे को जो है वो माँ के दूध के साथ साथ और खुराक इसलिए हम देते हैं क्योंकि माँ का दूध जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो डाइल्यूट हो जाता है और वो उतनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी नहीं दे पाता और एनर्जी भी नहीं दे पाता. लेकिन क्योंकि माँ के दूध के अंदर से एंटीबॉडीज जारी होती हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि आप 1-2 साल तक माँ का दूध कंटिन्यू रखें, लेकिन साथ आप और खुराक को बढ़ाते जाएं ताकि बच्चे की जरूरियात जो है वो बाकी खुराक से पूरी होती रहे और उसको जो एंटीबॉडी की
प्रोटेक्शन है वो माँ के दूध से मिलती रहे। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि 6 महीने के बाद माँ का दूध खत्म कर देना चाहिए। माँ का दूध आपको देते रहना चाहिए फॉर 1 year और फॉर 2 year, बट द थिंग इज दैट यू कैन कंटिन्यू इट विद अदर foods as well. Or if there is no mother milk available, or the mother is sick, or unfortunately the mother is died, or in those circumstances, you should start with the formula milk. That is the best alternative for the first year of life. ठीक है Excuse me. जी मैम फीमेल और मेल मदर जो होती हैं जो इन्फेंट्स की, उनके मिल्क में क्या डिफरेंस होता है कि ब्रेस्ट मिल्क में, कि मेल के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन हो या फिर ऐसा कोई होता है क्या? Not sure about that because I have analyzed the samples of more than 200 mothers, जो कि मैंने खुद ब्रेस्ट मिल्क के एनालिसिस किए थे। तो उसमें हमें प्री टर्म और टर्म के अंदर तो डिफरेंसेस मिले थे, but even that I would not be able to really comment on the gender of the child, but otherwise there are always differences between the mothers as well, कि सेम टाइम पर भी बर्थ हुई है दो बच्चों की, लेकिन माँ के दूध, दोनों माँ के दूधों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता था। सो अगर आप इसको जेंडर को पॉइंट आउट करके 100% मेल बच्चे के माँ के अलग रखते और फीमेल के माँ के सैंपल्स को अलग रखते और एनालिसिस करते तो मे बी देयर वुड बी अ डिफरेंस, लेकिन वो इंटर मदर भी डिफरेंट आ जाता है कि एवरी मदर हैज अ डिफरेंट कंपोजिशन। सो दैट वुड बी अनदर क्वेश्चन, बट अदरवाइज आई थिंक मेल और फीमेल जेंडर से इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट द टाइम ऑफ द बर्थ हैज वेरी डिफरेंट पैरामीटर्स। मैम जी मैम कुछ मदर्स लाइक अपने बच्चों को वो गॉट मिल्क दे रही होती हैं आफ्टर 6 मंथ। आपने कहा ना फर्स्ट ईयर में काउ मिल्क नहीं यूज करना चाहिए, तो वो रिप्लेस कर सकते हैं गॉट मिल्क से? Well, we have a study now going on where they have offered even the donkey milk to the preterm infants, which is really ridiculous for me, but it is being done in Europe. So goat milk can also be a substitute, but in these cases मेरा ख्याल है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, अभी तक जो लिटरेचर है वो ये कहता है कि ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट वन, एंड इफ यू डू नॉट हैव द ब्रेस्ट मिल्क देन यू शुड फॉलो द इन्फेंट फॉर्मूला as compared to going for these species, because you can start with the cow milk or the goat milk in the second year of life. Okay. ठीक है, so now we go to the next problem, that is kwashiorkor. द क्वाशोकोर जो है, क्योंकि दिस इज द, ये जो मरासमस है ये हो रही है प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डिप्लीशन से, कि बच्चे को आपने बार बार इन्फेक्शन के साथ एक्सपोज किया है आपने, जिसकी वजह से बच्चे को डायरिया हुआ है, बुखार हुआ है, और आप उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सके और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी प्रोवाइड नहीं कर सके, तो अल्टीमेटली मरासमस डेवलप हो गई है। जबकि क्वाशोकोर कैसे डेवलप होती है कि इसमें एनर्जी में भी आप पूरी दे रहे हैं लेकिन आप गुड क्वालिटी प्रोटीन नहीं दे रहे। Kwashiorkor arises when, after a prolonged period on the breastfeed, the child is weaned onto the traditional family diet. That is may be low in protein because of the poverty. It is mainly a disease of rural areas occurring in the second year of life. अब क्वाशोर्कोर क्या है कि ये गरीब और रूरल एरियाज में होती है और ये सेकंड ईयर ऑफ लाइफ में होती है। और ये क्यों होती है कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में सब बच्चों को जो है वो ब्रेस्ट फीड कराया जाता है रूरल एरियाज में, बिकॉज दे डू नॉट हैव अदर रिसोर्सेज कि वो जो है वो फॉर्मूला मिल्क की तरफ जाएं, तो मोस्ट ऑफनली ब्रेस्ट मिल्क इज द फर्स्ट चॉइस एंड दे आर प्रोवाइडिंग दैट। बट व्हाट हैपेंस फॉर द फर्स्ट 6 months, बच्चे को माँ के दूध से वो सारी प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन 6 महीने के बाद जैसे हम कह रहे हैं कि हमने खुराक के जरिए से प्रोटीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है और साथ एनर्जी देनी होती है, लेकिन क्योंकि माओं के पास वहां पर रिसोर्सेज नहीं होते और उनके पास ऑप्शंस नहीं होती कि वो कुछ डिफरेंट टाइप के फूड्स प्रिपेयर कर सकें, एंड दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स ऑल डे लॉन्ग, वो जाकर फसलों में काम कर रही होती हैं और अपने बच्चों को वो साथ ले जाती हैं, तो दे कीप ऑन ब्रेस्ट फीडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक फॉर एग्जाम्पल 9 months तक वो ब्रेस्ट फीड कराते रहते हैं, एंड दे आर नॉट ऑफरिंग एनी अदर फूड।
सो इफ दे आर नॉट ऑफरिंग एनी अदर फूड, तो बच्चे की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, और उसकी वजह से जो टाइम था 6 मंथ्स पर बच्चे को कोई और चीज शुरू कराने का, वो टाइम गुजर जाता है। और उसके बाद जब आप खाना शुरू भी कराते हैं, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वीइंग टू द ट्रेडिशनल फैमिली डाइट, विच मीन्स दैट यू आर स्टार्टिंग गिविंग द फूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया है और उसके बाद भी बच्चे को भूख लगी हुई है, तो आपने उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा दे दिया है कि अब बाकी सारा दिन जो है ये रोटी के टुकड़े को खाता रहेगा। 9 महीने का बच्चा है और वो सारा दिन रोटी के टुकड़े के साथ खेलता रहता है और खाता रहता है, तो मदर थिंक्स के आई हैव ऑफर्ड हिम द फूड, बट द थिंग इज दैट टुकड़ा ऑफ रोटी डज नॉट प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि बच्चे के अंदर प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से प्रोटीन की डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है, और वो पहले साल में नजर नहीं आती। जब वो बच्चा दूसरे साल में, अपनी जिंदगी के दूसरे साल में एंटर होता है, तो तब वो वाला जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने आती है। एंड व्हाट इज हैपनिंग, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? There is edema together with failure to thrive, anorexia, diarrhea, and generalized unhappiness or apathy. Edema हो रहा है, edema क्यों हो रहा है? Because we read that the plasma proteins are actually helping you to maintain the osmotic pressure. याद है ना आपको, हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स का फंक्शन पढ़ा था कि जो एल्ब्यूमिन है वो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, और अगर आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन्स इनफ अमाउंट में नहीं होंगी तो इट विल रिजल्ट इन एडिमा। तो ये वाला बच्चा जो है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो इस बच्चे के जिस्म के अंदर पानी ठहर जाता है। बट ऑन द अदर साइड इट हैज फेलियर टू थ्राइव, ये इसकी भी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, और एनोरेक्सिया होता है, भूख कम लगती है, और इसका भी पेट ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब इसको भी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगी जब ये अपनी जिंदगी के दूसरे साल में एंटर होगा। एंड देयर इज जनरलाइज्ड अनहैप्पीनेस एंड एपैथी, के ये बहुत चिड़चिड़ा रहता है, नींद भी पूरी नहीं आएगी, और मदर जो है वो इन प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आएगी। एडिमा में भी स्लाइट और ग्रॉस, ये भी हो सकता है कि बहुत कम एडिमा हो या फिर पूरे जिस्म के ऊपर फैला हुआ हो। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द डेफिशिएंसी, जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा जो है वो एडिमा प्रोमिनेंट हो सकता है। Then there are annular stomatitis, chillosis, smooth atrophied tongue, and commonly seen. ये जो है ये इम्यून सिस्टम की बीमारियां हैं और वाइटमिन्स की कमजोरी कमी की वजह से होती हैं। इसमें जो है वो इसको हम आम जबान में कहते हैं कि जो इंटरनल लाइनिंग है मुंह की वो पक जाती है, मुंह का आ जाना जिसको कहते हैं, और जबान जो है वो एट्रोफी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, एंड द बेबी कैन नॉट रियली swallow or eat something. Liver can be generally palpable and is firm but not tender. Hepatomegaly is sometimes marked. Liver का size increase हो जाता है. Some degree of anemias are always present. इन बच्चों के अंदर खून की कमी भी हो जाती है. Muscle wasting resulting in regression in physical development and making the child unable to walk or crawl. तो क्योंकि 2 साल का बच्चा जो होता है, एक्चुअली उसको खड़े होना चाहिए, उसे चलना चाहिए, बट द बेबी कैन नॉट स्टैंड and he cannot walk because he does not have enough amount of the proteins for the muscle development, and that's why he जी मैम ये चिलियोसिस का आपने क्या बताया? मुंह का आ जाना, कि जो आपकी बच्चे की जो मुंह होता है वो अंदर से सारा पक जाता है। ठीक है। So this baby will be presenting like this. जब आप इसको देखेंगे तो शायद ये आपको बहुत हेल्दी नजर आए, बट द थिंग इज जैसे आप इसका फुट देख रहे हैं इस वक्त, इट इज स्वॉलन, और जब आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे इसके पाँव के ऊपर तो ये अंदर को दब जाएगा, विच विल शो यू दैट इट इज एडीमा एंड रिटेंशन ऑफ वाटर इज ऑन ऑल हिज बॉडी। ठीक है, तो मे भी जब आप इसका वजन करें तो ये आपको वजन में अपने से उम्र के बराबर लगे, लेकिन ये वजन इसका सेहत वाला वजन नहीं है, इसके जिस्म में पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह इसको हम क्वाशियोकोर का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कहते हैं कि देयर इज एडीमा प्रेजेंट इन द बेबी, एंड दिस बेबी आल्सो नीड्स मेडिकल अटेंशन एंड क्लिनिकल केयर, and if you are not providing optimum amount of the care on time, this baby will also be on risk of dying.
This is the summary of the both problems, kwashiorkor and marasmus here, that if after the birth you have done the early weaning, यानी कि 6 महीने से पहले आपने कोई और खाना शुरू करवा दिया है या आपने डाइल्यूटेड मिल्क दिया है, तो उसकी वजह से रिपीटेड इन्फेक्शंस होंगी, बच्चे को ज्यादा देर भूखा बच्चा रहेगा क्योंकि वो बीमार होगा, बार बार बुखार होगा, और आप उसकी एनर्जी की जरूरत भी और प्रोटीन की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकेंगे. तो अल्टीमेटली द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विल बी न्यूट्रिशनल मरासमस एंड इट विल हैपन इन 8 to 12 months of age. 8 से 12 महीने का बच्चा जो है वो न्यूट्रिशनल मरासमस के साइंस के साथ हॉस्पिटल में आएगा. On the other hand, we have a baby who was born and he was getting breastfeeding and for breastfeeding, but after 6 months, he was still given only the breastfeed and not given any other food. And then he was weaned to the normal traditional family food. For example, after late weaning, he was offered the starchy family diet. For चावल उसको दे दिए गए या उसको सिर्फ रोटी का टुकड़ा दे दिया गया, जो कि उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा, जिसकी वजह से फिर उसको इन्फेक्शंस होंगी, क्योंकि जब प्रोटीन पूरी नहीं होगी तो फिर क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं होता, और जब इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता तो आपको बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, एंड अल्टीमेटली इट विल एंड अप इन kwashiorkor एंड इट कैन हैपन बिटवीन 12 to 18 months of the age. So 1 साल से 1.5 साल का बच्चा जो है, अगर वो डिफरेंट क्लिनिकल सिम्टम्स के सामने साथ आता है, तो दैट baby will be in kwashiorkor. If there is no edema and he was started with the early weaning, but he is still in the 12 month of age or the 18 months of age, he can also present nutritional marasmus as well. ठीक है. सो ये बात जो है ये आपको हिस्ट्री से पता चलेगी जब आप मदर का इंटरव्यू लेंगे, तो देन यू विल बी नोइंग दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज एंड हाउ यू हैव टू फर्दर प्रोग्रेस विद द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट. Children who are seriously ill require treatment in hospital, as their recovery depends on high standard of clinical care and nursing care and some laboratory support. When the acute phase of illness is over, they will need several weeks of special feeding and some medical supervision before recovery is complete. Because this is a very critical age when the baby is 1 year old or 2 years old. Still the baby has very small stores, and if you do not provide optimum care and timely medical attention, you can lose the life. So it is very important that you should know your responsibilities, and then you can think about how to manage the patient. तो यहाँ पर अभी मैं अपने लेक्चर को ऑफ कर रही हूँ. अगर आप लोगों ने अभी इस बारे में कोई क्वेश्चन करना है तो यू आर ओपन टू आस्क नाउ, बिकॉज फर्दर विद द ट्रीटमेंट आई वांट टू डिस्कस इट इन अ फ्रेश न्यू क्लास. अस्सलाम वालेकुम मैम. आपको समझ आ गई है? जी. यस मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम आजकल जो एजुकेटेड मदर्स हैं ना, वो भी मतलब हार्डली 2 to 3 months अपने बेबीज़ को जन्म पे ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उसके बाद वो घर छोड़ जाती हैं और वो फार्मूला मिल्क पे फीड कर रहे होते हैं, और वो हेल्दी मैम दिखने में उनको ज़्यादा हेल्दी लग रहे होते हैं. इवन वो कह रही होती है कि हमारा बेबी ज़्यादा हेल्दी है दूसरों की निस्बत पे ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं. तो मैम उनको तो ये वो तो इसको बल्कि अच्छा समझ रही होती हैं कि शायद हम अच्छा करेंगे. जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, और यही प्रॉब्लम है हमारे. हाँ, और इसी वजह से अभी अगर आप अपने नेशनल स्टैटिस्टिक्स देखें तो हमें ये पता चलता है कि पिछले 10 सालों में हमारे पास जो ओबेसिटी का चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और वो यही प्रॉब्लम है कि हम फ्रॉम द वेरी अर्ली एज हाई प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मोटा नजर आ रहा होता है और हम खुश हो रहे होते हैं कि हमारा बेबी सही ग्रो कर रहा है, बट अल्टीमेटली इट इज एंडिंग अप इन अनदर क्राइसिस. So nutrition, अगर आप सब पढ़ रहे हैं तो this is our responsibility to create awareness among the people that how we should manage our patients, and from the very beginnings ये सारी जो हमारी interventions हैं ये हमने pediatric population से इसीलिए शुरू करनी है कि छोटे बच्चों से अगर हम food preferences को बेहतर तरीके से manage करेंगे तो फिर हम एक healthy normal generation जो है वो develop करेंगे. Yes ma'am. So you understood marasmus and kwashiorkor clearly, ठीक है?
अब मुझे ये Yes, समझ आ ma'am. रही है कि आप 75 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और इन 75 बच्चों को सबको क्वाशरकोर और मरासमस की बिल्कुल सही समझ आ गई है। अब आप लोग एमएससी में पहुंच जाएं, आप पीएचडी में पहुंच जाएं, आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप क्वाशरकोर और मरासमस के कॉजेज भी बता सकें, उसके प्रॉब्लम्स भी बता सकें, और एक पेशेंट जो है अगर वो क्वाशरकोर के साथ आता है तो आपको समझ आ जाए कि ये क्वाशरकोर का पेशेंट है। वो पेशेंट अपने मुंह से तो नहीं बताएगा कि मैं क्वाशरकोर का पेशेंट हूँ, लेकिन आप उसके सिम्टम्स को देखकर ये पहचान जाएं कि ये क्वाशरकोर का पेशेंट है और ये मरासमस का है। ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। और ये मैं आपको Yes, बता रही हूँ ma'am. कि ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। आपको जब आप प्रैक्टिस में निकलेंगे आपको हर दूसरा बच्चा इस प्रॉब्लम के साथ नजर आएगा। सो अगर आपका इसके बारे में इल्म मुकम्मल होगा तो यू विल बी एबल टू हेल्प पीपल, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग द इनफ नॉलेज देन यू विल बी स्ट्रगलिंग कि मैं क्या करूँ यहाँ पर। सो फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास कि हम इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या हैं और हमें किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए। दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। यस Okay, मैम। ma'am. ओके देन डोंट कंफ्यूज थिंग्स, ठीक है, क्योंकि आगे जो मेरा लेक्चर है वो थोड़ा सा ओवरलैप करेगा। सो आई वुड लाइक कि आप इसको क्लियर रखें अपने माइंड में जो अभी तक हमने पढ़ा है। इसके आगे जो चीजें आएंगी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं और उसी की वजह से हमारे मास्टर और पीएचडी लेवल तक के बच्चे जो हैं वो गलत आंसर्स करते हैं फिर। सो आई मैम वॉन्ट यू ऑल टू बी अटेंडेंस जो है वो विद मी एंड स्क्रीनशॉट ट्राई टू लेती है अंडरस्टैंड इट आपने? प्रॉपरली। Yes, that I expect that either the Zaviba or Tuba or जो वो आपके एक कौन है उस लड़के का नाम, सॉरी, Shiraz, they will make the screenshot and they will share it with me. Okay, ma'am. Thank you. Have a good day and see you then on tomorrow's class. कल भी हम इसी तरह 11:20 पर ही लेंगे। On Friday, okay, ठीक है yes. मैम। ठीक है, फिर फ्राइडे को क्लास होगी। मैम जी मैम वो ना असल में हमारी जो है ना वो लैब लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, तो शायद ट्यूसडे को हमारा इस टाइम पे जब हमारी क्लास हो रही है तो शायद बायोकेमिस्ट्री की लैब हो, क्योंकि सर कह रहे हैं कि आप टाइम टेबल को फॉलो करें। ठीक है, तो फिर हम इसको अर्ली रख लेते हैं। चलिए ठीक है मैम, फिर मैं सर से कंफर्म करके आपको कंफर्म कर दूँ। ठीक है, ओके, ओके मैम, अल्लाह थैंक यू मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह Allah Hafiz, ma'am.